हम पढ़ेंगे एजेकियल 16 चैप्टर और यहजकेल के भविष्यवाणी 16 अध्याय। हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे BSI बाइबल में से। पवित्र आत्मा, हम आपसे विनती करते हैं, आपके अलावा ये वचन हमारे समझ में आना असंभव है। ये वचन की जानकारी केवल पवित्र आत्मा आपके पास है। हम जो आप कहेंगे, आप सिखाएंगे, उस पर हम भरोसा करेंगे और परमेश्वर के अधीन रहेंगे। हम वायदा करते हैं पवित्र आत्मा, जो वचन आप हमारे अंदर रखेंगे वो वचन के पार हम नहीं जाएंगे। जो वचन के दायरे हैं हम उसी में अपने आप को बनाए रखेंगे और परमेश्वर को महिमा देंगे। नासरी यीशु के नाम में इन वचनों की बढ़ोतरी सामर्थ और प्रबलता के साथ हम में होती जाए। यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन आमीन। एजेकियल 16th चैप्टर किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। फर्स्ट वर्स से, अगेन द वर्ड ऑफ द लॉर्ड केम unto me saying, Son of man, cause Jerusalem to know her abominations, and say, Thus saith the Lord God unto Jerusalem, Thy birth and thy nativity is of the land of Canaan. Thy father was an Amorite, and thy mother an Hittite. And as for thy nativity in the day thou wast born, thy navel was not cut, neither wast thou washed in water to supple thee. Thou wast not salted at all, not swaddled at all. None I pitied thee to do any of this unto thee, to have compassion upon thee. But thou wast cast out in the open field to the loathing of thy person in the day that thou wast born. 6 verse आगे, and when I passed by thee and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee, when thou wast in thy blood, live ye. I said unto thee, when thou wast in thy blood, live. I have caused to hear thee to multiply as the bud of the field, and thou hast increased and waxen great, and thou art come to excellent ornaments. Thy breasts are fashioned, and thine hair is grown, whereas thou wast naked and bare. Now when I passed by thee and looked upon thee, behold, thy time was the time of love, and I spread my skirt over thee, and covered thy nakedness. Yea, I swear unto thee, and entered into a covenant with thee, saith the Lord God, and thou becomest mine. Then washed I thee with water, yea, I truly washed away thy blood from thee, and I anointed thee with oil. I clothed thee also with broidered work, and shod thee with badger's skin, and I girded thee about with fine linen, and I covered thee with silk. I decked thee also with ornaments, and I put bracelets upon thy bracelets upon thy hands, and a chain on thy neck, and I put a jewel on thy forehead, and earrings in thine ears, and a beautiful crown upon thine head. Thus wast thou decked with gold and silver, and thy raiment was of fine linen, and silk, and broidered work, and thou didst eat fine flour, and honey, and oil, and thou wast exceeding beautiful, and thou didst prosper into a kingdom. And thy renown went forth among the heathen for thy beauty,
for it was perfect through my comeliness which I had put upon thee, saith the Lord God. But thou didst trust in thine own beauty, and placed the harlot because of thy renown, and pouredst out thy fornications on every one that passed by. Here's it was. And of thy garments thou didst take, and deckest thy high places with divers colors, and placed the harlot up thereupon. The like things shall not come, neither shall it be so. Thou hast also taken thy fair jewels of my gold and of my silver which I had given thee, and madest to thyself images of men, and didst commit whoredom with them, and tookest thy bridal garments, and coveredst them, and thou hast set mine oil and mine incense before them. My meat also, which I gave thee, fine flour and oil and honey, wherewith I fed thee, thou hast even set it before them for a sweet savour, and thus it was, saith the Lord God. Moreover, thou hast taken thy sons and thy daughters, whom thou hast borne unto me, and this hast thou sacrificed unto them to be devoured. Is this of thy whoredoms a small matter, that thou hast slain my children, and delivered them to cause them to pass through the fire for them? And in all thine abominations and thy whoredoms thou hast not remembered the days of thy youth, when thou wast naked and bare, and wast polluted in thy blood. And it came to pass after all thy wickedness, woe unto thee, saith the Lord God, that thou hast also built unto thee an eminent place, and hast made thee an high place in every street. Thou hast built thy high place at every head of the way, and hast made thy beauty to be abhorred, and hast opened thy feet to every one that passed by, and multiplied thy whoredoms. Thou hast also committed fornication with the Egyptians, thy neighbors great of flesh, and hast increased thy whoredoms to provoke me to anger. Behold, therefore I have stretched out my hand over thee, and have diminished thine ordinary fruit, and delivered thee unto the will of them that hate thee, the daughters of the Philistines, which are ashamed of thy lewd way. Thou hast played the war also with the Assyrians, because thou wast unsatiable. Yea, thou hast played the harlot with them, and yet couldst not be satisfied. Thou hast moreover multiplied thy fornication in the land of Canaan unto Chaldea, and yet thou wast not satisfied therewith. How weak is thine heart, saith the Lord God, seeing thou doest all these things, the work of an imperious, whorish woman, in that thou buildest thine eminent place in the head of every way, and makest thine high place in every street, and hast not been as an harlot in that thou scornest hire, but as a wife that committeth adultery, which taketh strangers instead of her husband. They give gifts to all whores, but thou givest thy gifts to all thy lovers, and hirest them that they may come unto thee on every side for thy whoredom, and the contrary is in thee from other women in thy whoredoms, whereas none followeth thee to commit whoredoms, and in that thou givest a reward, and no reward is given unto thee. Therefore thou art contrary. Wherefore, O harlot, hear the word of the Lord. Thus saith the Lord God,
because thy filthiness was poured out, and thy nakedness discovered through thy whoredoms with thy lovers, and with all the idols of thy abominations, and by the blood of thy children, which thou didst give unto them. Behold, therefore, I will gather all thy lovers with whom thou hast taken pleasure, and all them that thou hast loved with all them that thou hast hated. I will even gather them round about against thee, and will discover thy nakedness unto them, that they may see all thy nakedness. And I will judge thee as a woman that break wedlock and shed blood are judged. And I will give thee blood in fury and jealousy. And I will also give thee into their hand, and they shall throw down thine eminent place, and shall break down thy high places. They shall strip thee also of thy clothes, and shall take thy fair jewels, and leave thee naked and bare. They shall also bring up a company against thee, and they shall stone thee with stones, and thrust thee through with their swords. And they shall burn thine houses with fire, and execute judgments upon thee in the sight of many women. And I will cause thee to cease from playing the harlot, and thou also shalt give no hire any more. So will I make my fury toward thee to rest, and my jealousy shall depart from thee, and I will be quiet and will be no more angry. Because thou hast not remembered the days of thy youth, but hast fretted me in all these things, behold, therefore I also will recompense thy way upon thine head, saith the Lord God. And thou shalt not commit this lewdness above all thy abominations. Behold, every one that useth proverbs shall use this proverb against thee, saying, as is the mother, so is her daughter. Thou art thy mother's daughter, that loatheth her husband and her children, and thou art the sister of thy sisters, which loathe their husbands and their children. Your mother was an Hittite, and your father an Amorite, and thine elder sister is Samaria, she and her daughters that dwell at thy left hand, and thy younger sister that dwelleth at thy right hand is Sodom and her daughters. Yet hast thou not walked after their ways, nor done after their abominations, but as if that were a very little thing, thou wast corrupted more than they in all thy ways. As I live, saith the Lord God, Sodom thy sister hath not done, she nor her daughters, as thou hast done, thou and thy daughters. Behold, this was the iniquity of thy sister Sodom. Pride, fullness of bread, and abundance of idleness was in her and in her daughters. Neither did she strengthen the hand of the poor and needy. And they were haughty and committed abomination before me. Therefore I took them away as I saw good. Neither hath Samaria committed half of thy sins, but thou hast multiplied thine abominations more than they, and hast justified thy sisters in all thine abominations which thou hast done. Thou also which hast judged thy sisters, bear thine own shame for thy sins that thou hast committed, more abominable than they. They are more righteous than thou. Yea, be thou confounded also, and bear thy shame in that thou hast justified thy sisters. When I shall bring again their captivity, the captivity of Sodom and her daughters, and the captivity of Samaria and her daughters, then will I bring again the captivity of thy captives in the midst of them.
that thou mayest bear thine own shame, and mayest be confounded in all that thou hast done, in that thou art a comfort unto them. When thy sisters Sodom and her daughters shall return to their former estate, and Samaria and her daughters shall return to their former estate, then thou and thy daughters shall return to your former estate. For thy sister Sodom was not mentioned by thy mouth in the day of thy pride, before thy wickedness was discovered, as at the time of thy reproach of the daughters of Syria, and all that are round about her, the daughters of the Philistines, which despise thee round about. Thou hast borne thy lewdness and thine abominations, saith the Lord. For thus saith the Lord God, I will even deal with thee as thou hast done, which hast despised the oath in breaking the covenant. Nevertheless, I will remember my covenant with thee in the days of thy youth, and I will establish unto thee an everlasting covenant. Then thou shalt remember thy ways, and be ashamed when thou shalt receive thy sisters, thine elder and thy younger, and I will give them unto thee for daughters, but not by thy covenant. And I will establish my covenant with thee, and thou shalt know that I am the Lord, that thou mayest remember and be confounded, and never open thy mouth any more because of thy shame, when I am pacified toward thee for all that thou hast done, saith the Lord God. हम पढ़ेंगे यहेजकेल की भविष्यवाणी 16 अध्याय पहले वचन से। व्यभिचारिणी यरूशलेम, पहले वचन से। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, यरूशलेम को उसके सब घृणित काम जता दे और उससे कहे, हे यरूशलेम, प्रभु यहोवा तुझसे यूं कहता है, तेरा जन्म और तेरी उत्पत्ति कनानियों के देश से हुई, और तेरा पिता तो एमोरी और तेरी माता हित्तिन थी। तेरा जन्म ऐसा हुआ कि जिस दिन तू जन्मी उस दिन न तेरा नाल काटा गया, न तू शुद्ध होने के लिए धोई गई, न तेरे कुछ लोन मला गया, और न तू कुछ कपड़ों में लपेटी गई। किसी की दया दृष्टि तुझ पर नहीं हुई कि इन कामों में से तेरे लिए एक भी काम किया जाता, वरन अपने जन्म के दिन तो घृणित होने के कारण खुले मैदान में फेंक दी गई थी। जब मैं तेरे पास से होकर निकला और तुझे लहू में लौटते हुए देखा, तब मैंने तुझसे कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। हाँ, तुझ ही से मैंने कहा, हे लहू में लौटती हुई जीवित रहे। फिर मैंने तुझे खेत के पौधे के समान बढ़ाया और तू बढ़ते बढ़ते बड़ी हो गई और अति सुंदर हो गई। तेरी छातियाँ सुडौल हुई और तेरे बाल बढ़े, तो भी तू नंगी थी। मैंने फिर तेरे पास से होकर जाते हुए तुझे देखा, और अब तू पूरी स्त्री हो गई थी। इसलिए मैंने तुझे अपना वस्त्र ओढ़ाकर तेरा तन ढाप दिया और सौगंध खाकर तुझसे वाचा बांधी, और तू मेरी हो गई। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। तब मैंने तुझे जल से नहलाकर तुझ पर से लहू धो दिया और तेरी देह पर तेल मला। फिर मैंने तुझे बूटेदार वस्त्र और सुई सो के चमड़े की जूतियां पहनाई और तेरी कमर में सूक्ष्म सन बांधा और तुझे रेशमी कपड़ा ओढ़ाया। तब मैंने तेरा श्रृंगार किया और तेरे हाथों में चूड़ियां और गले में हार पहनाया। फिर मैंने तेरी नाक में नथ और तेरे कानों में बालियां पहनाई और तेरे सिर पर शोभायमान मुकुट भरा। तेरे आभूषण सोने चांदी के और तेरे वस्त्र सूक्ष्म सन रेशम और बूटेदार कपड़े के बने।
फिर तेरा भोजन मैदा, मधु और तेल हुआ और तू अत्यंत सुंदर वरन रानी होने के योग्य हो गई। तेरी सुंदरता की कीर्ति अन्य जातियों में फैल गई, क्योंकि उस प्रताप के कारण जो मैंने अपनी ओर से तुझे दिया था। तू अत्यंत सुंदर थी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामवरी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था उसी से मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगे ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, ऐसे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होंगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु मैं तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यों ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाई। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे बाल बच्चे उन मूर्तों के आगे आग में चढ़ाकर घात किए हैं? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी अपने लहू में लौटती थी। यरूशलेम का जीवन एक वेश्या के समान। 23 वचन से आगे, तेरी उस सारी बुराई के पीछे क्या हुआ? प्रभु यहोवा की यह वाणी है, हाय तुझ पर हाय, तूने एक गुम्मट बनवा लिया और हर एक चौक में एक ऊंचा स्थान बनवा लिया, और एक एक सड़क के सिर पर भी तूने अपना ऊंचा स्थान बनवाकर अपनी सुंदरता घृणित कर दी, और हर एक स्त्री को कुकर्म के लिए बुलाकर महाव्यभिचारिणी हो गई। तूने अपने पड़ोसी मिस्री लोगों से भी जो मोटे ताजे हैं व्यभिचार किया, और मुझे क्रोध दिलाने के लिए अपना व्यभिचार बढ़ाती गई। इस कारण मैंने अपना हाथ तेरे विरुद्ध बढ़ाकर तेरा प्रतिदिन का खाना घटा दिया, और तेरी बैरिन पलिश्ती स्त्रियों जो तेरे महापाप की चाल से लजाती है उनकी इच्छा पर मैंने तुझे छोड़ दिया है। फिर भी तेरी तृष्णा न बुझी, इसलिए तूने अश्शूरी लोगों से भी व्यभिचार किया, और उनसे व्यभिचार करने पर भी तेरी तृष्णा न बुझी। फिर तू लेन देन के देश में व्यभिचार करते करते कसदियों के देश तक पहुंची, और वहां भी तेरी तृष्णा न बुझी। प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि तेरा हृदय कैसा चंचल है कि तू ये सब काम करती है जो निर्लज्ज वेश्या ही के काम है। तूने हर एक सड़क के सिरे पर जो अपना गुम्मट और हर चौक में अपना ऊंचा स्थान बनवाया है, क्या इसी में तू वेश्या के समान नहीं ठहरे? क्योंकि तू ऐसी कमाई पर हंसती है, तू व्यभिचारिणी पत्नी है। तो पराये पुरुषों को अपने पति के बदले ग्रहण करती है। सब वेश्याओं को सब वेश्याओं को तो रुपया मिलता है, परंतु तूने अपने सब मित्रों को स्वयं रुपये देकर और उनको लालच दिखाकर बुलाया है कि वे चारों ओर से आकर तुझसे व्यभिचार करें। इस प्रकार तेरा व्यभिचार अन्य व्यभिचारियों से उल्टा है। तेरे पीछे कोई व्यभिचारी नहीं चलता, और तू किसी से दाम लेती नहीं, वरन तू ही देती है। इसी कारण तो उल्टी ठहरी। यरूशलेम को परमेश्वर का दंड।
इस कारण हे वेश्या, यहोवा का वचन सुन। प्रभु यहोवा यूं कहता है, तूने जो व्यभिचार में अति निर्लज्ज होकर अपनी देह अपने मित्रों को दिखाई और अपनी मूरतों से घृणित काम किए और अपने बच्चों का लहू बहाकर उन्हें बलि चढ़ाया है, इस कारण देख, मैं तेरे सब मित्रों को जो तेरे प्रेमी है और जितनों से तूने प्रीति लगाई और जितनों से तूने बैर रखा, उन सबों के चारों ओर से तेरे विरुद्ध इकट्ठा करके उनको तेरी देह नंगी करके दिखाऊंगा और वे तेरा तन देखेंगे। तब मैं तुझको ऐसा दंड दूंगा जैसा व्यभिचारिणियों और लहू बहाने वाली स्त्रियों को दिया जाता है, और क्रोध और जलन के साथ तेरा लहू बहाऊंगा। इस रीति मैं तुझे उनके वश में कर दूंगा और वे तेरे गुम्मटों को ढा देंगे और तेरे ऊंचे स्थानों को तोड़ देंगे। वे तेरे वस्त्र जबरन उतारेंगे और तेरे सुंदर गहने छीन लेंगे और तुझे नंगा करके छोड़ देंगे। तब तेरे विरुद्ध एक सभा इकट्ठी करके वे तुझ पर पथराव करेंगे और अपनी कटारों से आर पार छेदेंगे। तब वे आग लगाकर तेरे घरों को जला देंगे और तुझे बहुत सी स्त्रियों के देखते दंड देंगे, और मैं तेरा व्यभिचार बंद करूंगा और तू फिर छिनाले के लिए दाम न देगी। जब मैं तुझ पर पूरी जलजलाहट प्रकट कर चुकूंगा, तब तुझ पर और न जलूंगा, वरन शांत हो जाऊंगा और फिर न रिसियाऊंगा। तूने जो अपने बचपन के दिन स्मरण नहीं रखे, वरन इन सब बातों के द्वारा मुझे चिढ़ाया, इस कारण मैं तेरा चाल चलन तेरे सिर पर डालूंगा और तू अपने सब पिछले घृणित कामों से और अधिक महापाप न करेगी। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जैसी माँ वैसी पुत्री। 44 वचन से आगे देख, सब कहावत कहने वाले तेरे विषय यह कहावत कहेंगे, जैसी माँ वैसी पुत्री। तेरी माँ जो अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उसकी पुत्री ठहरी, और तेरी बहिनें जो अपने अपने पति और बच्चों से घृणा करती थी, तू भी ठीक उनकी बहिन निकली। तेरी माता हित्तिन और पिता एमोरी था। तेरी बड़ी बहन शमरोन है, जो अपनी पुत्रियों समेत तेरी बाई ओर रहती है, और तेरी छोटी बहन जो तेरी दाहिनी ओर रहती है, वह पुत्रियों समेत सदोम है। तो उनके से चाल नहीं चली और न उनके से घृणित कामों ही से संतुष्ट हुई। यह तो बहुत छोटी बात ठहरती, परंतु तेरा सारा चाल चलन उनसे भी अधिक बिगड़ गया। प्रभु यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, तेरी बहन सदोम ने अपनी पुत्रियों समेत तेरे और तेरी पुत्रियों के समान काम नहीं किए। देख, तेरी बहन सदोम का अधर्म यह था कि वह अपने पुत्रियों सहित घमंड करती, पेट भर भर के खाती और सुख चैन से रहती थी और दीन दरिद्र को न संभालती थी। अतः यह गर्व करके मेरे सामने घृणित काम करने लगी, और यह देखकर मैंने उन्हें दूर कर दिया। फिर शोमरोन ने तेरे पापों के आधे भी पाप नहीं किए। तूने तो उससे बढ़कर घृणित काम किए और अपने घोर घृणित कामों के द्वारा अपनी बहनों से जीत गई। इसलिए तूने जो अपनी
बहनों का न्याय किया, इस कारण लज्जित हो, क्योंकि तूने उनसे बढ़कर घृणित पाप किए हैं। इस कारण वे तुझसे कम दोषी ठहरी है। इसलिए तू इस बात से लज्जा कर और लजाती रहे, क्योंकि तूने अपनी बहनों को कम दोषी ठहराया है। सदोम और शमरोन की पुनर्स्थापना। 53 वचन से आगे, जब मैं उनको अर्थात पुत्रियों सहित सदोम और शोमरोन को बंधुआई से लौटा लाऊंगा, तब उनके बीच ही तेरे बंदियों को भी लौटा लाऊंगा, जिससे तू लजाती रहे और अपने सब कामों को देखकर लजाए, क्योंकि तू उनकी शांति ही का कारण हुई है। तेरी बहिनें सदोम और शोमरोन अपनी अपनी पुत्रियों समेत अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी, और तू भी अपनी पुत्रियों सहित अपनी पहली दशा को फिर पहुंचेगी, जब तक तेरी बुराई प्रकट न हुई थी, अर्थात जिस समय तक तू आसपास के लोगों समेत अरामी और पलिश्ती स्त्रियों की, जो अब चारों ओर से तुझे तुच्छ जानती है, नाम धराई करती थी, उन अपने घमंड के दिनों में तो तू अपनी बहन सदोम का नाम भी न लेती थी, परंतु अब तुझको अपने महापाप और घृणित कामों का भार आप ही उठाना पड़ा है। यहोवा की यही वाणी है, एक वाचा जो सदा तक ठहरेगी। 59 वचन से आगे, प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूंगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूंगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब तू अपने बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी, और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूंगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूंगा, और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिससे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। पवित्र आत्मा, हम तुझे धन्यवाद करते हैं कि तेरे वचनों में से तूने हमें चलाया, हमें फिट एंड फिक्स कर रहा है। भले ही ये वचन पिता परमेश्वर एक लंबा अध्याय और परमेश्वर उसके अंदर की समझ प्राप्त करने में हम उतने तेज नहीं रहे, फिर भी परमेश्वर पिता हमारा भरोसा तुझ पर है पवित्र आत्मा, कि तो हमारे लिए ये वचन के भेद एक तरह से हमको एक बहुत प्रभावशाली बना कर देगा, और परमेश्वर के सम्मुख हम अपने चाल चलन में परमेश्वर चाहता है उस समान हम ईश्वरीयता में ढल कर आएंगे। इस बात पर हम भरोसा करते हैं। हम धन्यवाद के साथ हम फिट एंड फिक्स होते रहे और ईश्वरीय रचना में ढलते रहे। मांगते हैं नासरी यीशु के नाम में, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन। 2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। जॉन 12 चैप्टर 30 वर्स से 41 वर्स, 1 क्रॉनिकल 17 चैप्टर। 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान। यूहन्ना रचित सुसमाचार 12 अध्याय का 30 से 41 वचन तक, और पहले इतिहास की पुस्तक 17 अध्याय हम पढ़ेंगे। ये जब हम पढ़ने वाले हैं तो एक अकेले के व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में पढ़ना है। परमेश्वर का आत्मा इन वचनों के अंदर से हमारी सहायता करेगा। जिस रचना में परमेश्वर हमको देखना चाहता है, उस रचना के अंदर होने के लिए हमें एकांत में बैठाकर वो इन वचनों के आधार से हमारे जीवन में सुधार लाएगा, और पवित्र अनुग्रह हमारे लिए उसने दे रखा है। अनुग्रह के आत्मा का निश्चित हमने लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा हमें फिट एंड फिक्स कर,
परमेश्वर के वचनों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, अभिषेक में, और हमें ईश्वरीय रचना डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आ। नासरी यीशु के नाम में विनती करते हैं, सुन और कबूल कर मेरे पिता। आमीन, आमीन, आमीन।